Hello everyone. Welcome to Nutrition Gyan Prabha official platform. So, in today's class, we are going to discuss regarding some very important questions, selected questions from the area of textile. Okay. So, definitely, we all know that the textile is a very individual area which is basically very much important in respect to your UGC NET Home Science examination, and from this area in every cycle, definitely more than 6 to 10 questions are usually asked, sometime less, but this is very common that this is a at least 8 to 10 questions you can definitely expect from textile portion. So yes, in this session I'm going to discuss some of the very important questions which definitely we are expecting could be asked in your coming examination on 7th of January, right? So yes, be focused in the class, try to understand, and definitely whenever you are seeing the videos in YouTube, if possible, also note down each and every individual point, important point which I am highlighting, right? As all of these questions we are providing importance. So definitely here individually 40 questions I am going to discuss with you all. So if there is even any more queries regarding those questions after the session, that also you can ask in the comment box. Okay. So I will be also addressing those questions after the uploading of this session also. So just do not worry, focus on your study, and definitely um, all the best for the examination. And we are the educator from Nutrition Gyan Prabha. Definitely we do know as educator from definitely more than 3 years we are um, providing guidance and teaching to the students. So definitely this textile section is important, right? So do revise this portion, and I think it would be a very important and very helpful class for you all. So here is the first question of this session or class. So yes, cotton fiber is chemically composed of what? Is it keratin, fibrin, cellulose, or lignin, right? So yes, we do know that definitely without any hesitation, we do know that cellulose is the option, and if we consider, so let's see the answer. Yes, so cellulose is the answer. So cellulose, cotton is a natural plant fiber made primarily of cellulose, giving it absorbency and strength. So अगर अलग से मैं इसको थोड़ा सिंपल वर्ड में समझाऊं तो यस, जब भी आप कोई भी एनिमल सॉरी कोई भी प्लांट रिसोर्स देखो फाइबर में, तो डेफिनेटली देयर आर सम इंडिविजुअल component or factor which are usually help to composing of such fibers or textile fibers. And on the other hand अगर एनिमल बोला जाता तो उसका भी एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है. तो सेलुलोज इज डेफिनेटली इज द आंसर, राइट? सो इसमें कोई अलग से कुछ नेसेसरी नहीं है, आप डायरेक्टली इसको इजीली याद कर सकोगे. एंड ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है एंड ये फिर से पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, which fiber has the highest moisture regain? तो इसमें अगर हम देखें तो which fiber has the highest moisture regains means moisture absorbency किसका सबसे ज्यादा है इसमें से. So first is your cotton, next definitely your silk, then wool, and fourth is a polyester. सो अगर आप अच्छे से देखो तो डेफिनेटली इसमें एनिमल जो इसमें जो बोला गया है कॉटन एनिमल मतलब आपका प्लांट बेस्ड फाइबर भी इसमें है एंड एनिमल बेस्ड फाइबर भी इसमें है. एंड बेसिकली उसके अलावा भी पॉलिएस्टर इसमें इसमें से कोई कुछ मतलब दोनों ही क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा. तो अगर आप अच्छे से सोचो कि
कौन सा वाला फाइबर का एब्जॉर्बेंसी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है? तो डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन आपका आंसर हो जाएगा ऊल, राइट। लेकिन ऊल क्यों है? सो ऊल बेसिकली एब्जॉर्ब्स अप टू 18% ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर। सो इसका जो नेचर है, ठीक है ना, तो इसीलिए अगर आप जब भी देखो, यस, कॉटन इज ऑल्सो अ वेरी like the nature of cotton is also very similar, but अगर कंपैरिजन में अगर आप देखो, तो अगर आपके पास कोई भी ऊल का कोई ऊल से बुना हुआ कोई भी स्वेटर एंड ऑल है ना, मतलब जो भी विंटर का कपड़ा हो गया, अगर आप अच्छे से देखो, तो जब भी आप उसको वाटर में मतलब इमर्स करोगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है। एंड ऑन द अदर हैंड cotton is also do the same but not as much as wool do। so इसमें डेफिनेटली अगर आप कंपेयर करो तो आंसर wool ही होगा। एंड अगर आप इसको देख मतलब अम, खुद से भी अगर आप चाहो, तो यस यू कैन ऑल्सो डू द सेम इन योर होम, एंड आप तब आपको मालूम पड़ जाएगा प्रैक्टिकली भी ये सही है आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट टू क्वेश्चंस वी हैव completed, and yes, both of these are important. Next, which fiber is obtained from the stem of the plant? तो इसमें से कौन सा वाला फाइबर आपको लगता है कि जो स्टेम मतलब स्टेम से प्लांट स्टेम से ऑब्टेन होगा? इज इट कॉटन, इज इट जूट, और इज इट वूल, और इज इट सिल्क? तो यस, इसमें जूट भी है, ऊल भी है। तो ऊल तो है एनिमल, और इसमें कॉटन एंड जूट एंड सिल्क, सिल्क भी एनिमल है। तो दो है प्लांट, तो सेम तो इसमें से कोई भी एक हो सकता है। तो ऐसे आप चेक मार्क कर लेना, मतलब किस किस को पहले से आप अच्छे से अगर पढ़ो, तो उसमें ही आपका थोड़ा मतलब 50% काम हो जाएगा। यस, तो these two options are definitely going to be omitted out, and from this rest like A and B, from as these are related to plants, so इसमें से ही कोई एक आंसर होगा। तो आंसर is your jute, because we know that the jute is the bast fiber basically extracted from the stem। so here is the answer, do remember the answer, right? so next, मर्सराइजेशन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। सी, एवरी क्वेश्चंस आर बेसिकली लाइक 40 में से 40 ही क्वेश्चंस, मतलब आप ये जान लीजिए, ये ऑलरेडी थोड़ा मतलब कोई भी क्वेश्चन होता है ज्यादा बार, लाइक 3-4 बार पूछा जा चुका है, कोई लाइक 2-3 बार, और कोई एक बार। तो बेसिकली ये हम थॉरोली स्टडी करके फिर आप लोगों के लिए लेके आए हैं, क्योंकि like previous year questions are usually probably if not like similarly like they are repeating it, but the concept is definitely going to be repeated for sure। तो इसीलिए ये जो चीजें आप देख रहे हो, तो वो हम लोग लाइक 10 years क्वेश्चंस को स्टडी करके फिर आप लोगों के लिए ले आए हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आप इसको अच्छे से फोकस करके समझ के याद रखना। मर्सराइजेशन इज मेनली डन टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ, इज इट वूल, इज इट सिल्क, इज इट कॉटन, और इज इट लाइनन। तो ये सब चीजें हम क्लास में ऑलरेडी बार बार पढ़ चुके हैं। तो आंसर इज डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन आपका कॉटन हो जाएगा। एंड इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि मर्सराइजेशन इंक्रीज द लास्टर स्ट्रेंथ एंड डाई एफिनिटी ऑफ कॉटन, सो दैट इज वाई मर्सराइजेशन इज यूजुअली डन। ओके, एंड ये जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज भी इसमें प्रॉपर्टीज पूछा गया है। ये प्रॉपर्टीज नहीं होगा, ये क्वेश्चन होगा पार्सलाइजेशन इज डन टू विच काइंड ऑफ लाइक फाइबर मोस्टली। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आंसर ये होगा। तो इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, बेसिकली टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली यू हैव टू लाइक, इसमें हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी नहीं, इसमें आ जाएगा आपका विच टाइप ऑफ फाइबर, ठीक है। तो ये आप मैं क्लास में ही लिख के दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम मतलब समझने में गलती ना हो, विच टाइप ऑफ फाइबर होगा, ठीक है। तो यस, सो डू रिमेम्बर दैट। सो नेक्स्ट,
तो अगर आप इसमें से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सो यस, व्हिच टाइप ऑफ फाइबर शोज मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू सनलाइट। तो इसमें से कौन सा वाला फाइबर वो है जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस की कैपेसिटी शो करेगा अगेंस्ट सनलाइट? इज इट wool, is it silk, is it cotton, or is it polyester? So yes, the answer is nothing but your polyester. Okay, so polyester has highest excellence resistance to UV degradation, so that is why the answer is polyester. So next, number 6, wool fiber surface has which structural features? तो wool में थोड़ा एक स्ट्रक्चरल फीचर्स थोड़ा बहुत आप अगर देखो तो डेफिनेटली आप अगर टच करो तो टेक्सचर अगर देखो उसमें ही पता चल जाएगा ये होता लाइक हाउ एग्जैक्टली इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ फाइबर्स। सो इसमें कोई कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को बोला गया है उसमें से ही आंसर होगा। तो फर्स्ट वन इज नॉट्स, सेकेंड इज योर स्केल्स, थर्ड इज सेरेशंस एंड द डी एंड द लास्ट इज द स्ट्रायशन। तो विच है बेसिकली द सरफेस फीचर of wool. So yes, that is nothing but the scale. Yes, so scale cause felting and shrinkage in wool. तो ये scaliness होता है, ठीक है, wool में। तो ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट, which natural fiber is the strongest? तो इसमें से ऑप्शन में जो बोला गया है उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा वाला है? Is it cotton? Is it wool? Is it silk? Or is it jute? So all of these are natural fiber, and the answer is definitely your the strongest one is none other than the silk. Okay, so silk has the highest tensile strength among natural fibers. Okay, so do remember. Next, yarn count indicates. So yarn count में से already questions पिछले बार like the last time it has already been asked from this yarn count. So the questions also could be asked in the coming session also, like coming examination on 7th also, like from this individual area. So इसमें question आप देख लो, yarn count indicates what? Strength of yarn, length of yarn, फाइननेस ऑफ और थिकनेस एंड ट्विस्ट पर इंच। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो यार्न काउंट इंडिकेट करता है फाइननेस और थिकनेस। ओके, सो एक्सप्लेनेशन में बोला गया है यार्न काउंट एक्सप्रेसेस यार्न थिकनेस। तो यस, हाउ मच इज इट थिक और हाउ मच इज इट थिन, तो ये यार्न का आपका जो काउंट हो गया, यार्न काउंट बोला गया है, ठीक है। तो यार्न काउंट में क्या आएगा वो आपको पूछा जा चुका है। तो रेलिवेंट टॉपिक इससे यार्न से ऑलरेडी क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा जा चुका है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हायर यार्न काउंट इनडायरेक्ट सिस्टम में आता है, तो इसका मीनिंग क्या है? हायर यार्न काउंट का मीनिंग है कोर्सर यार्न, thicker yarn, finer yarn, and stronger yarn. That means if the yarn count is higher, that means the fibers are coarser or thicker or finer or stronger. इसमें से कौन सा वाला आंसर सही होगा? तो yes, the answer is the finer yarn. So higher yarn count equals to finer yarn in indirect system. So indirect system भी है, वो भी आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज फिलामेंट। सो फिलामेंट यार्न, ये जो आप देख रहे हो नंबर क्वेश्चन 10। ओके, सो फिलामेंट यार्न इज बेसिकली शॉर्ट फाइबर twisted together, continuous in length, or always natural or always coarse. So इसमें से basically you can say the definition is appropriate for filament yarns are which one? So yes, the filament yarns are continuous in length. Okay, so definitely answer A नहीं होगा। अगर ये स्टेपल फाइबर बोला जाता तो शॉर्ट फाइबर होता, लेकिन ये फिलामेंट यार्न्स बोला गया है और फिलामेंट फाइबर बोला, अगर भी बेसिकली फिलामेंट यार्न हो या फिलामेंट फाइबर हो, तो दोनों ही चीजों में ये कंटिन्यूअस होता है, ये आपको याद रखना होगा। तो आंसर इज बेसिकली बी। ओके, नेक्स्ट, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में से अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11, फैब्रिक मेड बाय इंटरप्लेसमेंट ऑफ वर्ब एंड वेट
इज सो इसमें से इसको अगर फाइबर को आप जब बेसिकली बना फैब्रिक आप जब बना रहे हो फाइबर में से तो इंटरलेसमेंट होगा वर्प एंड वेफ्ट का एंड इसको बोला जाता है निटेड और वूवन और नॉन वूवन और फेल्टेड। तो ये होता क्या है? तो यस इसको बोला जाता है वूवन, राइट? सो वीविंग और वूवन, सो वर्प एंड वेफ्ट आर intersect at right angle in case of weaving. So next, fabric produced by interlooping of yarn is woven, braided. Sorry. So yes, fabric produced by interlooping of yarn is woven, braided, knitted और नेट। तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन होगा? क्वेश्चन 12 फिर से देख लीजिए आप लोग। फैब्रिक प्रोड्यूस्ड बाय इंटरलूपिंग ऑफ yarns, तो ये होता क्या है? वुवन होता है, ब्रेडेड होता है, नीटेड होता है और नेट होता है। तो यस योर आंसर इज द नीटेड। ओके, सो नीटेड में जो बेसिक चीज आप याद रखोगे दैट इज योर इंटरलूपिंग। ये जो टर्म होता है ना ये नीटेड में होता है। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो आंसर होगा आपका नीटेड। सो नीटेड फैब्रिक्स आर इलास्टिक ड्यू टू लूप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, which weaves shows diagonal ribs? Is it plain? Is it satin? Is it twill? Is it basket? तो अगर आप लोगों ने हम डेफिनेटली वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस इन क्लास in a very proper, in a very detailed manner, right? So the answer is definitely known to you all. So try to answer this one. So yes, let me show the answer. The answer is twill. So twill weave forms diagonal lines. Example denim. Okay, ये एग्जाम्पल्स भी है, देख के अच्छे से देख के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। Satin weaves is characterized by frequent interlacement, short floats, long floats और crisscross पैटर्न। तो इसमें से कौन सा वाला आंसर सही होगा? Frequent satin weaves is characterized by which one of from this? तो आंसर हो जाएगा आपका long floats. Okay, so long floats give smoothness and lustre. तो अगर फ्लोट जो सैटिन वीविंग में जो आपका बेसिकली जब इंटरलेसमेंट हो रहा है तो लॉन्ग फ्लोट्स अगर होगा तो डेफिनेटली वो ज्यादा क्या करेगा? लास्टर बेसिकली प्रोवाइड करेगा। तो इसका जो सैटिन का जो एग्जांपल है वो थोड़ा बहुत जो कपड़े में आता है वो भी आप अच्छे से देख के जाना। The strongest woven structure is plain, twill, satin और lino. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Please do remember this for your examination. So yes, the answer is the lino. Okay, ये आ चुका है बहुत बार and फिर से आ सकता है। Very frequent, basically in recent times also like 2 or 3 years, if I'm not wrong. Earlier, 2 3 years, basically before that also, once has been asked this question, I think. But please do remember this question. This is important for this time also. Okay. Number 16. Non-woven fabrics are formed by weaving, knitting, bonding, fibers, twisting yarns. नॉन वुवन फैब्रिक में बोला गया है कि वो कैसे फॉर्म होता है? वीविंग बाय वीविंग, नीटिंग और बॉन्डिंग द फाइबर्स और ट्विस्टिंग द yarn. सो ऑप्शंस आर वेरी इजी, राइट? बोला ही गया है कि नॉन वुवन फैब्रिक, तो वो आप कैसे बनाओगे? तो यस, अगर नॉन वुवन होगा तो वीविंग उसमें नहीं आएगा, बॉन्डिंग होगा, फाइबर को हम बॉन्ड करेंगे कि वो बन जाए, क्योंकि इसमें वीविंग आएगा ही नहीं। So fibers are bonded chemically sometimes, okay, or thermally. ये explanation भी याद रख लेना। Okay, now dyeing and printing. Indigo dye belongs to which class? Is it a acid dye or a reactive dye or a wet dye or a direct dye? So इसमें से कौन सा वाला आप लोगों को लग रहा है कि आंसर सही होगा? Okay, so yes, here is the answer. तो आंसर होगा wet dye. Okay, so indigo dye belongs to which class?
it belongs to wet dye. So indigo requires reduction before dyeing. So that is why it is a wet dye. See, इसमें थोड़ा बहुत मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप जब भी रिवाइज कर रहे हो, थोड़ा बहुत जो टाइप्स ऑफ डाई है ना, उसको एट अ ग्लांस अच्छे से देख लो कि उसमें आता क्या क्या है, एंड एग्जाम्पल्स भी अच्छे से देख लेना. तो वो फॉर दिस टाइम डेफिनेटली इट इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, dye with waste wash fastness is direct dye, acid dye, bad dye और basic dye. तो इसमें से आंसर आपका हो जाएगा bad dye. So bad dye is from a strong fiber bonds. तो yes, dye with waste fastness आपका जो होगा वो bad dye होगा. ठीक है. Okay. Next, tie and dye techniques of India is called इक्कत, बाटिक, बांधनी और कलमकारी. सो इसमें से कौन सा वाला आंसर आप लोगों को लगता है सही होगा? तो यस, फॉर टाई डाई द आंसर इज योर बांधनी. तो अगर आप अच्छे से सोचो, सो यस, इट इज अ टाइप ऑफ अ टाई डाई एंड फैब्रिक इज टाइड बिफोर द डाइंग पोर्शन, राइट? सो ये भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है फॉर दिस टाइम. सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए. Okay, so yes, the next question. So next question is the question number 20. So wax resist dyeing technique is it a इक्कत, is it बातिक और अजरक और लहरिया? तो wax resist होता है किस पे? तो ये जो ऑप्शंस आपको दिया गया है उसमें से ही आंसर है. तो आंसर इज योर बातिक. ओके, सो एक्सप्लेनेशन, wax resist dye पेनिट्रेशन. तो wax किस लिए यूज होता है? क्योंकि वो डाई को पेनिट्रेट करने नहीं देता, तो इसलिए यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 21. सो इक्कत इन्वॉल्व्स रेजिस्ट डाइंग ऑफ फिनिश फैब्रिक, वार्प ओनली, वेट ओनली और yarn बिफोर वीविंग. सो इक्कत इन्वॉल्व्स रेजिस्ट डाइंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ? बेसिकली आपका ये इसमें से जो ऑप्शंस है ना, ये बोला जा रहा है कि इक्कत और इक्कत इट इन्वॉल्व्स रेजिस्ट डाइंग. इसमें से कौन सा वाला उससे रिलेट करेगा? तो यस, द आंसर इज योर yarn before weaving. So the pattern appears after weaving dyed the yarn. So the answer will be your the answer is your D only, that is yarn before weaving. तो जब भी आप बेसिकली yarn बना रहे हो तो उससे पहले वीविंग करने से पहले ही आप उसको इसमें यूटिलाइज करोगे. ठीक है, रेजिस्ट डाइंग में. तो नेक्स्ट number 22. Kalamkari is mainly a form of screen printing, block printing, hand printing or machine printing. Okay, as we know, the number of questions are definitely around 40, so you have to complete it in a very faster manner, but I am still explaining all of the trying to explaining each and every question. Still, I have already mentioned, if there is any query regarding any of the question, do try to comment on the comment box after seeing the whole lecture. Okay, so the answer for the question number 22 is your option C, that is hand printing, sorry, hand painting. So ये painting नहीं होगा, printing होगा. So कलमकारी is mainly a form of hand आपका जो printing हो गया वो. So natural dyeing and hand painting are used. इसमें नेचुरल डाई एंड हैंड पेंटिंग यूटिलाइज होता है. ठीक है. टेक्सटाइल फिनिशेस से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों को लगता है, एंड डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट है. तो वो क्या है? फर्स्ट इज योर फिनिश यूज टू इम्प्रूव रिंकल रेजिस्टेंस इज कैलेंडरिंग, मर्सराइजेशन, रेजिन फिनिश और सिंगिंग. तो इसमें से जो भी ऑप्शंस दिया हुआ है सब फिनिशेस में ही आता है. तो जब आप रिंकल को बेसिकली रिंकल रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करना चाहोगे तो आंसर हो जाएगा आपका
बेसिकली नन अदर देन रेजिन फिनिश, जो ऑप्शन आपका सी में आ रहा है, तो ये होगा आपका आंसर. And resin forms cross-link in cellulose. So yes, resin finish are usually utilized to improve the wrinkle resistance. Okay, next. Sulfurization controls peeling, shrinkage, wrinkling or stiffness. तो सल्फराइजेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फिनिशिंग. तो ये किस लिए यूज होगा? पाइलिंग के लिए, और पीलिंग भी बोला जाता है. सो यस फॉर दैट, और श्रिंकेज और रिंकलिंग और स्टिफनेस. सो योर आंसर इज श्रिंकेज. ओके, सो फैब्रिक इज प्री श्रंक मैकेनिकली. तो यही जो मैकेनिज्म है, जो प्रोटोकॉल है, वो यही है जो एक्सप्लेनेशन में बोला गया है. Next, Sinzai removes oil stain, wrinkles, loose surface fibers or shrinkage. So yes, the answer is your loose surface fiber. तो ये इम्प्रूव करता है स्मूथनेस एंड अपीयरेंस को. अगर सिंगिंग बोला गया है तो ये आंसर होगा. नेक्स्ट, कैलेंडरिंग क्या प्रोड्यूस करता है? सॉफ्ट हैंडल, रिंकल रेजिस्टेंस, ग्लॉसी सरफेस और श्रिंक resistance. So yes, calendaring is also a very important your finishing, basically fiber finishing. So ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज ग्लासी सरफेस प्रोड्यूस करता है. ओके, सो फैब्रिक पासेस थ्रू सम हीटेड रोलर्स. सो एक लाइन में ही बोला गया है कि कैलेंडरिंग में होता क्या है. तो ये जो कैलेंडरिंग बोला गया है, और जो भी टेक्सटाइल फाइबर में से क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो या देख रहे हो, सिंगिंग हो गया आपका, डेफिनेटली सल्फराइजेशन हो गया, तो एक बार खुद से कंसेप्ट को जान लीजिए, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो. दीज आर इम्पोर्टेंट. Next, enzyme finishing is commonly applied to wool, silk, cotton or nylon. So the answer is your cotton. Okay, so cotton में ही enzyme finishing यूज किया जाता है to remove the fuzz and improve the softness. Next, textile testing and properties. So fabric strength is tested by abrasion test or tensile strength or piling test or crease recovery test. So अगर फैब्रिक का जो स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट किया जाएगा, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो होगा वही यूटिलाइज किया जाएगा टू मेजर द ब्रेकिंग फोर्स. ओके, नेक्स्ट 29, एबिलिटी ऑफ फैब्रिक टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर इज कॉल्ड resiliency, absorbency, porosity or elasticity. So this is very basic question. The answer is absorbency. Abrasion resistance is highest in cotton, wool, nylon or rayon. तो एब्रेशन रेजिस्टेंस किसमें, इसमें से कौन सा वाला जो फाइबर है उसमें ज्यादा होगा? तो आंसर इज योर्स नायलॉन. ठीक है, नायलॉन हैज द हाईएस्ट टफनेस. Next, piling is caused by dyeing defects, fiber entanglement, poor weaving, excess moisture. So answer is that fiber entanglement. Okay, तो explanation यही है कि loose fibers अगर होगा तो वो ही पाइलिंग क्रिएट करेगा सरफेस में. ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है कोर्स में, जो भी बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हो. एंड फॉर बेसिकली दीज आर वेरी वेरी छोटा छोटा लाइक गुठली टाइप का सरफेस में क्रिएट होता है, वही पाइलिंग होता है. एंड दिस ऑल आर नथिंग बट योर फाइबर entanglement. ओके, सो द आंसर इज बी. नेक्स्ट, fabric stiffness is measured by bursting test, cantilever test, tear test or abrasion test. So which is the answer? Fabric stiffness अगर हम मेजर करना चाहे तो इसमें से कौन सा वाला टेस्ट हम करेंगे? तो yes, the answer is your cantilever test. बेसिकली ये मेजर करता है बेंडिंग जो लेंथ होता है उसको. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, 33. Kanchipuram silk sarees originated from which area? Is it from Karnataka? Is it from Andhra Pradesh or
Tamil Nadu or West Bengal. So the answer is Tamil Nadu, and basically it is known for heavy silk and zari work. Okay, do remember this one also. Next, Pashmina fiber is obtained from where? Sheep, camel, goat, or yak. So yes, the answer is goat from चंगथंगनी गोट। तो ये जो नाम है, अगर ये पॉसिबल हो तो भी याद रख लेना, लेकिन गोट आंसर ये जरूर डेफिनेटली याद रख लेना। नेक्स्ट, बनारसी साड़ीज आर फेमस फॉर टाई एंड डाई, जरी वर्क, बातिक और इक्कॉट। तो इट इज डेफिनेटली द आंसर इज जरी वर्क। ओके, सो रिच गोल्ड एंड सिल्वर का ब्रोकेट वर्क होता है। एंड ये जो होता है ना मैचिंग, मैचिंग में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। प्लीज डू रिमेम्बर दिस क्वेश्चंस, दिस आंसर, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑन 7th। जियो टेक्सटाइल आर मेनली यूज्ड in apparel industry, medical field, construction work, or home furnishings. So the answer is construction work, and explanation is this, that it is usually used for reinforcement and drainage. Okay, so do remember the answer, and this kind of question we are expecting in this examination for sure. So important, I would say, and please do remember. Next, medical textile include carpets, bandages, curtain, hosiery. So yes, this kind of question, the answer is very much predictable if you do not know the concept also, but still these questions are important. Okay, so yes, the answer is your बैंडेजेस, जो यूज होता है हेल्थ केयर एप्लीकेशन में। नेक्स्ट, स्मार्ट टेक्सटाइल रिस्पॉन्ड टू कलर ओनली, केमिकल्स ओनली, एनवायरमेंटल स्टिम्यूली और वॉशिंग। तो स्मार्ट टेक्सटाइल किसमें बेसिकली रिस्पॉन्स करता है, किसमें? तो इसमें डेफिनेटली एनवायरमेंटल स्टिम्यूली होगा। तो रिस्पॉन्ड टू हीट, प्रेशर, लाइट। तो जब भी टेक्सटाइल के बारे में हम बेसिकली बेसिक से ज्यादा इन डेप्थ सोचेंगे तो यही चीजें कंसिडर किया जाता है, तो इसीलिए इसको स्मार्ट टेक्सटाइल भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इको फ्रेंडली टेक्सटाइल फोकस ऑन व्हाट? हाई कॉस्ट, फैशन ओनली, सस्टेनेबिलिटी एंड सिंथेटिक फाइबर। इफ यू आर basically understand the question, so definitely you do know the answer. The answer is option C, that is sustainability. Okay, so definitely sustainability reduce the environmental impact. So that is the answer, and do remember, it's very very much important. Next, the number 40, and we have covered the various topics till now, and here is the last question of this session. Technical textiles are designed mainly for aesthetic appeal, functional performance, or traditional use. And definitely the last option is decoration. So which one is the answer according to your perspective? So yes, the answer is functional performance. ठीक है, परफॉर्मेंस इज प्रायोरिटाइज ओवर अपीयरेंस। सो यस, परफॉर्मेंस को हम ज्यादा देखेंगे। एंड टेक्सटाइल, अगर टेक्निकल टेक्सटाइल की हम बात करें तो यस, दिस डिजाइन आर मेनली फोकस ऑन दैट ओनली। तो आई थिंक यू हैव covered so many questions in within just 30 minutes. So I think this session is going to be very much helpful full to all of you whosoever watching this video. Do share this video with all of your friends who are preparing and definitely going to sit for the examination on 7th January for UGC NET Home Science. Again, I am going to say this session is very much important. We have put our time and effort for this, so definitely we have a very good intention regarding this video. So do watch this video from start and do share it with your friends, and do provide your feedbacks also. Even if you have any queries, you can also ask in the comment box, also in the group also. Okay, and the number also we have provided. If you have any query, you can also directly DM on that. So thank you, and all the best wishes for your examination. Thank you again, and do watch it very carefully. These questions are important. Okay, dear. So thank you, and we are definitely hopefully again meet with a next important session with definitely if possible before the examination only. Okay, thank you, and blessed